Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Today class 7 students, we are again going to continue with chapter 8 comparing quantities. And we are going to continue with exercise 8.6, and today's part is part 13. Now those who have not watched the previous parts, that is part 1 to part 12, I have shared the link at the end of the video, or you can check it out in the playlist and see those parts, and then you see this part. Then what will happen? The concept will be clearer and it will be easy for you to do the sums quickly. Okay. Now till our last part, that is part 12, we did question number 2, okay, of 8.6. Now today we are going to do question number 3. So let us see what they are telling in question number 3. Rohit borrows rupees 6,40,000 from a bank to buy a car. So what we will do, we will write answer, and here directly principal is told. You can write P. Principal is how much? Rupees 6,40,000. Okay, at the rate of 12% per annum. So already rate also is been told, 12% PA, that means per annum, per year. Okay, for 5 years. So time is also told. Okay, how much? 5 years. And what they are telling, find the amount of money. See, find the amount of money Rohit must repay to the bank. That means you have to find out what? Amount. So how you will do the sum? You to find out amount, you need principal plus simple interest. Principal is there. If you have the simple interest, you add it and you will get the answer. So let us find out the simple interest. SI equal to, already I have told you the formula, P into T into R divided by 100. Okay. Now P is what? Rupees 6,40,000. Okay. Into T. T means time. Time is what? 5. And R means what? Rate. Rate is 12 by 100. Clear no? Now 100 has 2 zeros. Here 2 zeros cancels. So what is left? Let me do it here. Is equal to, so rupees 6,400. Okay, see 6,400 is left. Okay, I wrote 6,400 into 5 into 12. Okay, and nothing is there. Now we will multiply and we will get the simple interest. Let us multiply. See, 5 into 12 is how much? 60, and this one 6,400 into 60. Okay, so 0, how is to multiply? 0, 0, 0. So all will be 0, then 0, then 0. Again cross. 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 fours are 24, 2. Okay, 6 36 plus 2, 38. So what you get? 0, 0, 0, 4, 8, 3. Clear no? Like this you multiply. But if I am multiplying, what I will do? I will only multiply 64 and 6. 64 and 6 I will multiply. See, 6 4s are 24, 2, 6 6 are 36, 37, 38. So I will write 384. And then how many zeros are there? 1, 2, 3. So I will put it here. 1, 2, 3. So like this way, quickly also you can do the multiplication. Now, therefore, now we will write out what? We will find out the amount. So A equal to P plus SI. Okay. So P is how much? Rupees. Okay. 6,40,000 plus, again rupees here, how much coming? 384,000. So now we will add it, and once we add it, we will get the answer. Chalo, let us add here only. Okay. 640, then 0, 0, 0. Then here 384,000. So if I add it, so 0, 0, 0, 4 is here, 8 plus 4, 12, 1 carry, 6 plus 1, 7, 7 plus 3, 10. So 10,24,000. Okay. So
what we will write? The amount of money Rohit must repay to the bank is equal to, therefore the amount, you can write like this way, amount of money Rohit must repay to the bank equal to rupees 10,24,000, and this is the answer. Okay, very easy sum. Now थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं. रोहित बैंक से कर्जा लिया है, ठीक है. कितना अमाउंट लिया है? 6,40,000 रुपीज. ओके, किस लिए लिया है? ना एक तो गाड़ी खरीदने के लिए, कार, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. सो कितना ब्याज है? ना 12% ईयरली उसको देना है. तो 6,40,000 रुपीज क्या है? प्रिंसिपल है. और ब्याज क्या है? 12% पर एनम, और फॉर 5 ईयर्स. तो टाइम कितना दिया है? समय 5 साल. ओके, तो रोहित, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रोहित मस्ट रीपे टू द बैंक. तो रोहित कितना रुपया वापस बैंक को देगा? प्रिंसिपल तो देगा ही, उसके साथ ब्याज भी देगा. तो क्या है बोल रहा है? तो परसेंटेज, ओके, परसेंट, रेट ऑफ परसेंट इज ऑलरेडी टोल्ड, 12% पर एनम यू हैव टू पे. सो फ्रॉम देयर वी विल फाइंड आउट, हम लोग निकालेंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू टी इंटू आर. तो पुट करेंगे और आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट. अब अमाउंट इक्वल टू व्हाट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐड करने से ही आ जाएगा, वही रुपया वो बैंक को वापस करेगा. मतलब प्रिंसिपल के साथ कितना ब्याज हो रहा है, ये तो ब्याज का परसेंट है 12%, मतलब रेट इज दिस मच बट टोटल अमाउंट इज हाउ मच. सिंपल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज कितना दे रहा है वो निकालकर उसके साथ ऐड करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4. सो व्हाट दे आर टेलिंग इन क्वेश्चन नंबर 4? रचित बोरोड रुपीज 15,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड. सो रचित बोरो कर रहा है, कितना रुपया बोरो कर रहा है? ना 15,000 रुपया. सो प्रिंसिपल कितना है? P इक्वल टू व्हाट? रुपीज 15,000. ओके, he gave rupees 3,000 at the rate of 15% per annum and the remaining at the rate of 18% per annum. ओके, मतलब ये 15,000 रुपया रचित ने बोरो किया है, मगर इसको वो जब वापस दे रहा है अलग अलग करके दे रहा है. 3,000 रुपया दे रहा है 15% ब्याज से, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग है उसको दे रहा है 18%, ओके, पर एनम. तो हम लोग क्या करेंगे? इधर में केस 1 कर देंगे और इधर में करेंगे केस, सपोज केस 2 कर देंगे. ठीक है, केस 1 केस 2. ओके, अभी तुम लोग बोलोगे सर क्यों केस 1 केस 2 किया है? उसका भी कारण है. अभी ये 15,000 को, पहला 3,000 रुपया को वो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है, और दूसरा रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना है? तो रिमेनिंग होगा 12,000, बिकॉज आउट ऑफ 15 3,000 गॉन, देन 12,000 इज लेफ्ट. सो इसको हम लोग करेंगे P1, इसको करेंगे P2, दैट मीन्स केस 1 एंड केस. नाउ फॉर केस 1 द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? इट इज 15%. And for the case 2, the remaining portion rate of interest is different, 18%. ठीक है, और टाइम कितना बोल दिया? हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे इन 4 years. सो दोनों के लिए 4 years है, तो इधर में भी टाइम क्या है? 4 years. ठीक है, मगर जो 15,000 रुपया उसने लिया है, 3,000 रुपया, उसमें 3,000 रुपया वो 15% रेट में दे रहा है, ओके, इंटरेस्ट, और बाकी जो है वो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है. तो अलग अलग करके उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हु? रचित. सो SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100. ताहले P is how much? Rupees 3,000 into T is 4.
rate is how much? 15 by 100. 100 two zeros cancels. So here what we get? rupees 30 into 4 into 15. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 15 into 4 60, 60 और 30 मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 6 3 3 और here 6 18, 6 3 18 और 2 0 तो आ गया 1800. अभी इसका निकालेंगे. SI इक्वल टू व्हाट? सेम फॉर्मूला P इंटू T इंटू R बाई 100. तो P कितना है? ₹12,000 इंटू 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100. तो 0 0 कैंसिल हो गया. तो क्या है? 120 इंटू 4 इंटू 18. तो इसको मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा. नाउ 4 इंटू 18, सो 18 और 4 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 4 इंटू 8 32, 4 1 4 5 6 7 72 आ गया. उसके बाद 120 से मल्टीप्लाई करेंगे. 120 इंटू 72, सो 0 2 2 4 2 1 2. Then 7 0 0 7 2 14, 1 carry 7 1 7 8. So 0 4 6 8. तो कितना आ गया? 8640. तो ये है इसका सिंपल इंटरेस्ट. तो इधर में हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 1 लिख सकते हैं क्योंकि केस 1 और ये केस 2, सो SI2 लिख सकते हैं. अभी इसके बाद ये दोनों करने के बाद मैं, तुम लोग नीचे में करना, मैं थोड़ा इधर में करता हूँ. देयरफॉर लिखेंगे. अच्छा से तुम लोग को दिखाई दे रहा है. सो देयरफॉर हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे? सो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट पेड बाय रचित, ठीक है, इन 4 years इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या? ₹1800 प्लस रुपीस क्या? 8640. तो ऐड करने से ही आंसर आ जाएगा. तो इधर में ये है, उसके साथ 1800, तो 0 4 8 6 14 1 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10. सो आ गया 10440. तो ये आ गया हम लोग का आंसर. ठीक है. आई होप यू ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द सम. वेरी इजी. ओनली here whatever principle he has taken, he is dividing the principle. Why dividing? Because he is paying the rate of interest differently. Okay, for 3,000 rupees 15% and the remaining, that means 12,000 rupees 18%. Now Clear. We will solve question number 5. So let us see question number 5. Now this question number 5 is very important also. Okay, at what rate of interest? So first only they are telling at what rate of interest. That means rate of interest you have to find out. Clear? Will a sum of money double itself? मतलब whatever sum means principal you are borrowing, you are taking, it will become double in 5 years. मतलब 5 साल में तुमने सपोज 1000 रुपया लिया है तो 5 साल में 2000 रुपया हो जाएगा. मतलब अमाउंट बन जाएगा कितना? 2000, डबल हो जाएगा. तो वो हमको करना है. तो कैसे करेंगे? लेट, इधर में प्रिंसिपल भी नहीं बोला है, ठीक है. लेट P इज इक्वल टू ₹x और P भी ₹x ऑल्सो लिख सकते हो. देयरफॉर आफ्टर 5 years amount will become how much? Amount will become double. Double means twice, that means 2x. Double, इधर में double means what? Double means twice. Okay, that means 2 times. You can say 2 times. And 2 times means what? 2 into 2 times what? The principal. 2 times principal. So 2p. So 2p क्या लिखा है? p हम लोगों ने प्रिंसिपल हम लोगों ने x लिया है तो 2 into x, so 2x हो जाएगा. So then SI, after that SI will be how much? SI equal to amount minus principal. SI कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने से ही SI निकल आएगा. तो अमाउंट कितना है? 2x. प्रिंसिपल कितना है? x.
इसको सब्ट्रैक्ट करने से 2x माइनस x माने 1x, तो 2x माइनस 1x इज व्हाट, x ओनली, सो रुपीज x, ठीक है, वेरी इजी। 2x सोचो के 2 मैंगोज माइनस 1 मैंगो, तो कितना मैंगो बचा है, एक ही मैंगो, तो 1 मैंगो, 1 तो हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ मैंगो लिखेंगे, तो इधर में भी 2x माइनस x विल बी व्हाट, ओनली x, क्लियर। और टाइम कितना दिया है, t इज इक्वल टू, t कितना बोला है, 5 years, क्लियर। इसके बाद चलो इधर करते हैं, ठीक है। नाउ आई कैन राइट बाय द प्रॉब्लम as per question also you can write. I have a habit of writing always by the problem. According to the question also you can you can write it. Okay, no problem. So by the problem what I can write, simple interest is equal to, कितना आया simple interest, x आया, तो मैंने x लिखा। अभी एक तो कंडीशन, ओके। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, p इंटू टी इंटू आर बाई 100 इक्वल टू x। मैंने रुपीस क्यों लिख रहा हूँ, x, ठीक है। अभी उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना है x, तुम रुपीस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो x, टाइम कितना है 5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है नहीं मालूम, वही तो निकालना है हमको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी r, और इधर में लिखेंगे 100 इक्वल टू x, ठीक है। अभी देखो x 1 जा कट गया, ठीक है, तो क्या पड़ा है 5 इंटू आर बाई 100 इक्वल टू 1। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इम्प्लाइज साइन, देन आर इक्वल टू 1 इंटू, नाउ 100 नीचे में है, 100 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100, और 5 ऊपर में है, 5 इधर आएगा तो बाई 5, तो काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, सो कितना आ जाएगा, सो 1 इंटू 20, 20, क्लियर। पॉइंट तुम ये समझोगे कि पॉइंट है, पॉइंट नहीं, r इज इक्वल टू 20, ठीक है। देयरफॉर व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्रैकेट में r इज इक्वल टू 20%, ये आ गया हम लोगों का आंसर, क्लियर। So I hope question number 5, and question number 5 is very very important. Again I am telling you, your teacher when they will set the question number 5 is very important sum, and the teacher will give, okay, many in many schools the teacher gives this sum in the exam, okay. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you really like my channel, then I would like to request all my students that to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next. Now question number 6. In how many years will rupees 3650 amount to rupees 4526 at the rate of 6% per annum? So what they are telling in this question, in how many years, that means in how many years, when they are telling you to find out the time, time is not told, okay. Will rupees this much amount to rupees this much, that means first one is principal is how much, rupees 3650, and this is becoming how much, rupees 4526, okay, rupees 3650, हाँ, कितना सालों में रुपीज 4526 हो जा रहा है, ठीक है। और एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउ मच, 6% पर एनम, PA लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा पहला वाला सम किया है, बाय द प्रॉब्लम। देखो एक साथ भी हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट है प्रिंसिपल है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, और इधर में अमाउंट कितना है, अमाउंट है
रुपीस, अगर मैं रुपीस लिखूंगा, हाँ पहला वाला सम में भी बोल रहा था रुपीस भी लिख सकते हो, माइनस इधर में रुपीस 3650, ठीक है लिख दिया। अभी इसके बाद यहां से हम लोग यहां पे करते हैं, ठीक है। तो P कितना है, ₹3650 इंटू टी तो मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क, सो टी रहेगा, मगर आर मालूम है 6%, सो 6 लिखेंगे और 100 इक्वल टू, अभी ये दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इधर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4526 और 3650, ठीक है। ठीक से सब्ट्रैक्ट करना, इधर में रॉन्ग होगा तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। सो 6 minus 0 6, 2 or 5 you cannot subtract, you to borrow, you to cut this one, make it 4 and here comes 1. So 12 minus 5, so how much comes 7, okay. Now 4 and 6 you cannot subtract, so again you have to borrow, cut 4, make it 3 or 14. So 14 minus 6 is how much, 8, clear. So what you get, 876, clear. अभी हम टी निकालेंगे, सिर्फ टी लिखेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे बाकी सब कहाँ गया ना, बाकी सब ट्रांसफर करेंगे उस साइड में। सो 100 नीचे में है, 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू 100, ठीक है। और ऊपर में क्या है, ओके इधर में मैंने रुपीस दिस माइनस रुपीस दिस, सो इधर में भी रुपीस लिखना पड़ेगा, थोड़ा इधर में जगह करके इधर में रुपीस लिख देते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डस्टर से थोड़ा रफ करके और एक बार लिखते हैं रुपीस अच्छा से, जैसे हाँ 876, ठीक है। तो इधर में रुपीस लिखेंगे, ठीक है। और 100 ऊपर चला गया और ये दोनों नीचे आ जाएगा क्योंकि वो ऊपर में है, तो रुपीस 3650 इंटू 6, ठीक है। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, सो टी लिखेंगे इक्वल टू, देखो पहले रुपीस कैंसिल हो गया, अभी इधर में एक ठो जीरो कैंसिल हो गया। अभी हम लोग 876 इंटू 10 लिखेंगे, उसके बाद 365 इंटू 6, ठीक है। अभी काटाकाटी करेंगे और, ठीक है। इधर में हाँ एकदम हम लोग इधर में भी कर सकते हैं मगर कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आराम से करेंगे। सो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। अभी 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 हेयर, 5 7 जा 35, 1 कैरी, now 5 3 जा 50. Now what we will do, we will write again t equal to, इधर में भी कर सकते हैं, करते हैं, चलो कर ही लेते हैं, 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। उसके बाद कितना बचा है, 2 27, 3 9 जा 27 और अगेन 6 है, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 292/73, ठीक है। अभी t कितना होगा 73, सो इधर में 2 है लास्ट, सो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 1 4 7 28 29, सो 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया 4, समझ में आया या नहीं। सो देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू 4 years, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.6। सो जब भी लास्ट सम आता है बहुत खुश होता हूँ क्योंकि एटलीस्ट आई एम एबल टू कंप्लीट दिस 8.6 बिकॉज students are telling that sir please complete it, so today it will be completed, okay. So what we will do this sum, or how we will do this sum, so let us see number 7, the interest paid on a certain sum of money, okay. So sum of money, always remember certain sum of money means only the principal, sum means principal, okay. After 4 years, so after 4 years means they have told the time is what, 4 years, okay. टाइम बोल दिया है 4 साल, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो रेट भी बोल दिया है 5% PA। सो जैसे जैसे जो भी इंफॉर्मेशन बोल दे रहा है लिखते जाओ, ठीक है। वॉज ₹840,
तो कितना है, वॉज रुपीज 840। सो यहाँ पे एक तो चीज़ देखो, द इंटरेस्ट, अभी अगर मैं यहाँ से ये लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है, ये लाइन को अप टू पर एनम में अंडरलाइन किया, ठीक है। अभी ये लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा, तो कैसे पढ़ूंगा, द इंटरेस्ट और उसके बाद पढ़ूंगा वॉज रुपीज 840। आई एम नॉट रीडिंग दीज वर्ड्स, ओके, विच आई हैव अंडरलाइन, आई एम reading from here. The interest was rupees 840. That means 840 is the simple interest, rupees 840. Clear no? Now if I read together, the interest paid on a certain sum of money, that means the principal, after 4 years, so time is 4 years, at the rate of 5%, that means rate is 5%, was rupees 840. So this 840 is actually what? It is the interest. How? I showed you by underlining. When I underline, don't read that part. You directly read the interest was rupees 840. Clear no? So that means the simple interest is told. Okay. Find the principal. That means certain sum of money. I told only that it is known as principal. So you have to find out principal, borrowed, and the amount returned. Amount returned means you have to find out the amount also. So here two things they are telling us to find out. So two answers will come. So how we will do? By the problem. Okay. So what I will write? Simple interest is equal to how much? Rupees 840. Now simple interest का formula क्या है? P into T into R by 100. By now I think everyone knows the formula. Okay. Simple interest formula. और मैं आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला था, यही है मेन फॉर्मूला, अच्छा से याद कर लो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। P का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, तो P ओनली। T का वैल्यू कितना है 4, सो आई विल राइट 4। R का वैल्यू कितना है 5%, सो 5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू रुपीज 840। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ P लिखेंगे, बाकी सब उधर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 840 कैसे ट्रांसफ़र करना है, आई थिंक बाय नाउ एवरीवन नोज। ओके, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो 4 into 5। क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द प्रिंसिपल। सो 4 1s are 4, here you can cut 4 2s are 8, 4 1s are 4 and then 0. Clear? Now you can again cancel 5 1s are 5, 5 4s are 20, 1 is extra, it goes, so 10, so 5 2s are 10. So what you get, rupees here 42 into 100. So what you get, principal is equal to rupees 4200. तो आ गया आंसर, प्रिंसिपल 4200। अभी हमको और एक तो चीज निकालना है, अमाउंट। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू क्या, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अभी अभी फ्रेश निकाला है 4200, और SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 840, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा, सो 4200 और 840, तो ऐड करेंगे 0 4 8 + 2 10 1, सो 5040। तो आ गया हम लोगों का आंसर। मेरा ख्याल से सभी ने सम नंबर 7 को समझ लिया है। यू हैव all of you have understood question number 7. If you cannot, again you return back, okay, and you can again see the answer how I have solved, okay, and then you can practice, okay. Very easy this one, but question number 5 and 6 is very important sum. Question number 5 6, this is the more easy, okay, but 5 and 6 for you it is very important. So nicely practice 8.6. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए